Okay, so now let us diverge a bit. अभी तक हम गुप्तास की बात कर रहे थे, तो traditionally we should have talked about the Maokharis and the Pushyabhutis now, and then move on to the struggle for Kannauj, and then the Cholas and the Cheras, all those things. But थोड़ा सा divergence लेते हैं, and let us talk about sort of an important topic to understand the chronology, and that is the Greco-Bactrians, Scythians, and Hunas. So they basically played a prominent role they basically played a prominent role in northwestern India, and they put pressure on the native kingdoms from the northwest. अब यहां पर एक चीज देखिएगा, दैट वी कंप्लेन, अरे ये जो राजपूत्स हैं, और द चहमान्स, टू बी प्रिसाइज, they did not care about the northwestern border. But if you will deep dive into the history of India, the threats have always come from the northwest. Yes or no? Because our structure is such that peninsula नीचे है साउथ में, sea by three sides. Okay, चाइना से खतरा आ नहीं सकता. Why? Because of the Himalayas. Only one possible route where you can conquer India is via the northwest, via the Pakistan border. Okay, so this is the reason why, if you will see the northwestern culture, the cultures of the Punjabis, the cultures of the Pakistanis, okay, the culture of people of Delhi, it is very pompous. Why it is very pompous? मतलब बहुत तड़क भड़क वाला culture है. Because this type of culture is what thrives when you are constantly attacked. Okay, so this is a need rather. ये जो कल्चर है, दिस इज एक्चुअली स्ट्रेस में बना हुआ कल्चर है. बिकॉज इफ यू आर फ्रॉम दिस एरिया, हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान, जनरली you have this ancestral memory of being on the attack. So naturally you become what? You become outward. Because आप अगर इंट्रोवर्टेड रहिएगा, इनवर्ड रहिएगा, so then you will be attacked. And that is why, if you will see, if you meet any Punjabi, so he will be very lively. बहुत मतलब थोड़ा मस्ती मजाक करेंगे. Let us go outside. Because that is the need. हरियाणवी से मिलो, he will be very extroverted. In general, I'm saying there are people who are introverted, but in general, the culture is such कि नहीं, सबसे मिलना है, बाहर जाना है. Why? Because this is what is the need of that region. अब देखिए, आज इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान. पाकिस्तान इज वेयर? नॉर्थ वेस्ट. सो दिस इज ए एंशियंट प्रॉब्लम विच इज कंटिन्यूइंग टू दिस डे. उस समय जो थे, अब तो चलो इस्लामिक इन्वेजन हैपेंड लेटर ऑन. उस समय, इन द इनिशियल डेज, दीज थ्री वेयर द प्रॉब्लम्स: द ग्रेको बैक्ट्रियंस, द स्किथियंस, एंड द हुनास. Many theories are there, but the best theory that is there is they came, they attacked, they stayed, and they got assimilated. Whosoever comes to India does not stand out. He gets assimilated. आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसी से मिलके, he will have a very Indian name. That person will have a very Indian name, but you will not know that, okay, 600, 700 years ago, his ancestors, they came from that time. The Brits were here for a shorter period, I'll say, and they were from a far outer place. बहुत दूर से थे. Okay, फिर भी आप देखिएगा तो मिक्सिंग ज्यादा हुई नहीं उनकी. बिकॉज दीज द स्किथियंस एंड द हुनास, दे कंटिन्यू टू मिक्स with the natives, whereas the British, they had this official policy which was dictated from England to not mix. लेकिन फिर भी एंग्लो इंडियंस, याद है, वी जस्ट रिमूव द रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन द राज्यसभा. Anglo Indians was a big community till the 1960s, and that is why they had reservations in the parliament. Okay,
दे हैड रिजर्वेशंस इन द पार्लियामेंट, हमने हटा दिया बाद में जाके, कि उनको पहले हमने सोचा कि लोकसभा में हम भेजेंगे बेसिकली। सो ऑल दीज पीपल, ओके, ऑल दीज पीपल, उनको हमने हटा दिया बिकॉज देर आर नो मोर एंग्लो इंडियंस। मेजोरिटी ऑफ देम हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर यूरोप एंड यूएसए। बहुत कम रह रहे हैं। दोज हु आर लेफ्ट आर लिविंग इन द मसूरी रीजन। उत्तराखंड में कहीं शिमला मसूरी में आपको एक आध मिल जाएंगे, या वेलिंगटन साउथ में मिल जाएंगे, दैट्स इट। एनीवेज, सो नॉर्थ वेस्ट हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है। अब हम बात करते हैं ग्रेको बैक्ट्रियंस के बारे में, द इंडो ग्रीक्स। सो दे हैव अ हेलेनिस्टिक लेगेसी आफ्टर अलेक्जेंडर्स कैंपेन। बेसिकली दीज पीपल दे स्टेड बैक। अलेक्जेंडर आपको पता है कहां तक था, पोरस को लास्ट में हराया था, आफ्टर डिफीटिंग पोरस और पुरु, ही वेंट बैक। ओके, ही वेंट बैक, बट टिल द रीजन, अगर मैं आपको यहां तक दिखाऊं, हाँ ये देखिए मैप यहां पर है। स्टार्ट इसने कहां से किया था? स्टार्ट जो है इसका, इसकी स्टार्टिंग जो है इस तरफ से थी, यहां से आते हुए, एंड ही कैप्चर्ड ऑल दीज रीजन, और यहां पर फाइनली आके रुक गया। वाई? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द नंदास। ओके, ठीक है। तो ये जो है इस एरिया को, यहां तक अलेक्जेंडर था, तो ही वॉज अनडिफीटेड बाय द वे, he was undefeated by the way, and all these areas he consolidated, and he left his generals to rule. He said to his general that okay, you stay here, rule, and I'll go back. Alexander died on his way back. He could not, okay, he could not see uh, his he's from Macedonia, right? So he could not see Macedonia, and basically Alexander appointed governors to rule over this area. Okay, and it later came to be known as the Greco-Bactrian kingdom. हेलेनिस्टिक हम लोग उसको कहते हैं। हेलेनिस्टिक इज बेसिकली ग्रीक। सो अगर आप देखिएगा ग्रीक एयरफोर्स का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल नेम ऑफ द ग्रीक एयरफोर्स? इट इज द हेलेनिक एयरफोर्स। सो समथिंग विच इज हेलेनिक मतलब क्या होता है? ग्रीक। ओके, हेलेनिक नेवी, हेलेनिक नेवी, हेलेनिक आर्मी। अभी जैसे इंडिया का ग्रीस के साथ जॉइंट एक्सरसाइज हुआ था, तो द ऑफिशियल पीआईबी, जो उनका वो था, व्हाट व्हाट यू कॉल दैट, पीआईबी का जो टैगलाइन था, नॉट द टैगलाइन, द हेडलाइन वाज हेलेनिक एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स डिड अ जॉइंट एक्सरसाइज। सो हेलेनिक इज समथिंग अबाउट ग्रीस। जैसे इंडिया है ना, भारत बोलते हैं, इंडिया इज नोन टू द वर्ल्ड, एंड भारत इज समथिंग दैट द नेटिव से। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। इज इट क्लियर? तो हेलेनिक जब हम कहेंगे, हेलेनिक इन्फ्लुएंस मतलब ग्रीक इन्फ्लुएंस, एंड दे एस्टैब्लिश्ड इन अ प्लेस कॉल्ड बैक्ट्रिया, एंड द सेल्यूसिड एम्पायर गवर्न these territories initially, but around the mid 3rd century BCE, the governor Diodotus declared independence. So Diodotus the first, very Greek sounding name if you look at it. And then the Indo-Greek kingdoms arose when Bactrian rulers expanded across the Hindu Kush. So अगर आप देखिएगा इस एरिया पे, इस एरिया में, हिंदू कुश एरिया में, दे एक्सपैंडेड। ओके, यस, इंडोनेशिया हैज ऑफिशियल, उनका जो एयरलाइन है उसका नाम गरुड़ा एयरफोर्स है। ओके, अब हम यहां देखते हैं मेजर रूलर्स कौन कौन थे इन दीज किंगडम्स, ग्रेको बैक्ट्रियन किंगडम्स का। डिमीट्रियस था, अर्ली 2nd सेंचुरी बीसी का। देन मेनांदर, और मिलिंदा नाम था इसका। नाम मेनांदर था, बट द लोकल पीपल यूज्ड टू कॉल हिम मिलिंद। अभी भी आप देखिएगा मिलिंद, देयर इज एन एक्टर आल्सो मिलिंद सोमन, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिज नेम इज मिलिंद सोमन। सो मिलिंदा, and he is associated with the Buddhist text Milind Panha or Milind Panho, that is questions of the Milind, and it highlights his philosophical dialogue with the monk Nagasen, and Nagasen जो है 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया है। बट इस तरीके से यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था दैट यू कुड नॉट हैव सॉल्व्ड इट। व्हाई? बिकॉज ओनली नोइंग नागसेन वाज नॉट इनफ। और नागार्जुना, नागसेन को कहीं कहीं पे नागार्जुना भी कहा गया है।
ओके, मिलिंद पन्हो को नागार्जुना से इन्होंने मैप किया हुआ था. मेनी पीपल गॉट कंफ्यूज्ड बिकॉज दे हैड रेड फ्रॉम द हिस्ट्री सोर्सेज नागसेन. So they got confused and they could not attempt. But Nagarjuna and Nagsen are the same people. Nagsen was the monk who was often referred to as Nagarjuna, not to be confused with the Nagarjuna who was the chemist of the Gupta period. Okay. So मिलिंद पन्हा याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. किससे रिलेटेड है? किंग मिनांदर और मिलिंद से. मिड सेकेंड सेंचुरी बीसीई. प्लीज कीप एन आई ऑन द क्रोनोलॉजी इटसेल्फ. Then he ruled from Sagala, that is modern day Sialkot. क्या क्या नाम हमने अभी तक पढ़ लिया? पुरुषपुरा, इट लेटर बिकेम पेशावर, द सिटी ऑफ द कुशान्स. रावलपिंडी को पहले क्या कहते थे? हमने इसके बारे में भी पढ़ा है. रावलपिंडी जो है, it was called something. Old name, what was the old name of Rawalpindi before the Muslims, before the Islamic? We studied about it, na? Rawalpura, Rawal or Rawalpura. It later, okay, it later became Rawalpindi. Okay, it later became what? It became Rawalpindi. Basically, गांधार जो है, ओके, गांधार जो है उसका ये कैपिटल था बहुत दिन तक. तक्षशिला जो है, ओके, तक्षशिला जो है उस रीजन में था. तक्षशिला वाज द कैपिटल. एंड रावल जो है, ओके, रावल जो है, इट वाज आल्सो अ प्रोमिनेंट सेंटर अराउंड द गांधार रीजन. ओके, इट वाज ए प्रोमिनेंट सेंटर अराउंड द गांधार रीजन. एंड एक और हमने बात की थी खम्बोज के बारे में, याद आया? खम्बोज के बारे में. सो खम्बोज वाज आल्सो इन दैट एरिया. तो खम्बोज जो है उसका कैपिटल वाज राजापुरा. Okay, that was Rajapura. And it is later said that this Rajapura was, which became Rawalpindi. तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? हमने सगला पढ़ा अभी, which later became the Pakistani city of Sialkot. Then we studied Purushpura, which was a Kushan city and it later became Peshawar. आज यहां पर पश्तून्स रहते हैं. कौन रहते हैं? पश्तून्स रहते हैं. And then we studied a city in the Gandhar region, which was the capital of the Kamboja, that is Rajapura or Rawalpura, and it later became Rawalpindi. कोई है रावलपिंडी से जिसको आप जानते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर बोला जाता है ना, शोएब अख्तर इज अ रावलपिंडी एक्सप्रेस. Coinage, so Indo-Greeks, they introduced advanced minting techniques. They produced bilingual coins, Greek on one side and Kharoshti or Brahmi on the other. Why? Because they paid respect to their origins. Origins कहाँ से था? Greek Hellenistic origin, as well as they are now ruling on the Indian territory. सो एक तरफ ग्रीक था, दूसरे तरफ जो इनका कॉइन्स था उस पे इंडियन लैंग्वेजेस में लिखा गया था, खरोष्ती या ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था. तो बाइलिंगुअल कॉइन्स जो है, इंडो ग्रीक्स, दे वेर द पीपल, द ग्रेको बैक्ट्रियंस, they were the people who did that, and their presence fostered the fusion of Greek styles with the local Gandharan traditions. Okay, and religious patronage, इन्होंने बेसिकली सारे जो लोकल कल्ट्स थे, ईरानिक कल्ट्स हो गया, देन लोकल ट्राइबल कल्ट्स, उसके साथ साथ बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, ऑल ऑफ देम वेर गिवन पैट्रोनेज. दे वेर नॉट वेरी कीन on adopting one particular religion over the other. And then because of the UAZs who later became the Kushans, उनके प्रेशर के वजह से सेंट्रल एशिया से प्रेशर है. कहां से प्रेशर है? ध्यान से देखिएगा. UAZs का प्रेशर इन पे सेंट्रल एशिया से आने लगा, सो दे कोलैप्स्ड. Okay. Then comes the Scythians or the Sakas. उसको स्किथियंस जो थे, दे बेसिकली हैड अ नोमैडिक स्टेपी हेरिटेज. आप देख सकते हैं कॉकसस माउंटेन और यूक्रेन वाला जो रीजन है, वहां से आपका
आप कह सकते हो, एंड दे वेर फ्रॉम द सेंट्रल एशियन स्टेपी रीजन एंड दे पुश्ड वेस्ट एंड साउथ बाय अदर नोमैडिक ग्रुप्स, and the Scythians they reached Bactria, Iran, and eventually into the Indian subcontinent. Western areas में they came and settled western and northern India में, and earliest rule जो है गांधार रीजन में फर्स्ट सेंचुरी बीसी, दिस इज इंपॉर्टेंट, कब था फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, दिस वाज अराउंड द टाइम दैट द मौर्यंस कोलैप्स्ड, around the time that the Mauryans started to collapse. Then the Western Satraps, okay, Western Satraps came. उसके पहले मोगा और माउज was one of the ruler. मोगा is a city also in Punjab if I am not wrong. आज के डेट में पंजाब एरिया में भी मोगा डिस्ट्रिक्ट या मोगा सिटी है. एंड ये जो है बंदा मोगा was one of the earliest साका और द Scythian ruler of गांधार. Then वेस्टर्न शात्राप्स जो थे दे इमर्ज्ड इन रीजन्स ऑफ मॉडर्न गुजरात, महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. कहां पर थे जरा देखिए. सो इस रीजन में आपके वेस्टर्न शात्राप्स जो हैं दे स्टार्टेड टू इमर्ज. एंड की रूलर उसका कौन था? रुद्र दमन. कुछ समझ में आ रहा है यहां पर? द नेम्स इट वेंट फ्रॉम माउज टू रुद्र दमन. The names of the Kushanas, Cadphises to Vasudev. Indianization had started to happen. To get accepted by the Indian population, the Raja adopted Indian names. Rudra Daman. Okay, he is known for Junagadh inscription. Again, this is important. Junagadh inscriptions के लिए जाना जाता है. And he is famed for patronage of Sanskrit. Again, this is a ploy to be accepted by the people. Okay, that the Raja is accepting Sanskrit. It means that he has legitimacy. He was given legitimacy by whom? The Brahmins. Why? Because he gave patronage to the Brahmins who studied Sanskrit. Then the local Saka governors call themselves Shatraps or Mahashatraps, which they said that I am the king or I am like the king. Coinage, it is usually silver coins. The Kanishk, the Kushanas and the Indo-Greeks, they had gold coins. और ये जो थे आपके, इन्होंने सिल्वर कॉइन्स जो है छोड़ के गए अपने पीछे. उसके साथ साथ they had some relations with the Satavahanas and the Guptas, but later on they clashed. Okay, they clashed with the Satavahanas and the Guptas and they were subdued. तो इनका प्लान क्या था यहां देखिएगा. प्लान ये था कि चलो यहां तक तो आ गए हैं इस एरिया तक, अब हम नीचे जाएंगे. लेकिन नीचे कौन बैठा हुआ था? नीचे बैठा हुआ था सातवाहनास. इफ यू रिमेंबर, पैठान वाला याद है? पैठान के बारे में हमने पढ़ा था, पालीटाना या पैठान. वहां से जो है द सातवाहनास के सातवाहनास जो है दे बेसिकली फॉर्म्ड ए वॉल एंड डिड नॉट लेट देम पास. ओके, हुनाज. सो हुनाज जो थे हेप्थालाइट्स या व्हाइट हुन्स जिनको आप कहेंगे. सो हेप्थालाइट्स कहां से थे ये देखिए. ये जो रीजन है अप्रोक्सीमेटली सेंट्रल एशिया का, वहां से थे. और उसके बाद ये इधर आए एंड अफगानिस्तान वाले रीजन में आके इन्होंने अपना गुजर बसर स्टार्ट किया. दे वर वेरी ब्रूटल hordes. Huns जो थे they were very barbarian like and they were nothing like the earlier refined Indo-Greeks who tried to blend with the Indians. But the Hunas also then after some time they blended with the Indians. अब यहां देखिएगा बार बार गुप्तास पे यहां से ये प्रेशर लगा रहे थे. And because of this pressure the later Guptas they could not stand and then they collapsed. Okay, initially the Guptas were able to repel the invasion, but after that they did not. Okay, why Central Asians have always been so brutal? Because वहां पर fertility नहीं है. The soils are not much fertile and mountainous region है. If you will look,
वहां पर एवरीथिंग हैज टू बी टेकन, स्नैच्ड, देयर इज नॉट मच सरप्लस। अगर आप देखिएगा स्टेपी में ग्रासेस होते हैं, बट कैसे ग्रासेस होते हैं? ऐसे ग्रासेस जो यूजलेस होते हैं, घोड़ा खा सकता है, घोड़ा जो खा सकता है इंसान नहीं खा सकता। ओके, व्हाई कांट वी ईट द ग्रासेस? बिकॉज सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज हमारे अंदर नहीं होता। For humans, we cannot eat the grasses because we cannot digest the cellulose. The horses and the cows, they have those cellulose digesting bacteria. So you don't have anything. You only have useless vegetation. You cannot grow proper crops. So आप क्या कीजिएगा? You, ठीक है, you will eat something by snatching, then it will become part of your culture to become hordes. तो इसीलिए यूरोप जो है इतना टेरिफाइड क्यों रहता था हुंस से? यूरोप्स यूज टू बी वेरी टेरिफाइड बाय द हुंस बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। आप पीजेंट थे, यू ग्रू समथिंग इन द यूक्रेन वैली। यूक्रेन जो था, इट वॉज अ वेरी फर्टाइल लैंड, स्टिल इज। इट्स कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। एंड यू कम, and the Huns used to come and they used to kill the peasants, and then they used to take away the surplus. Okay. सो ये जो है बार बार प्रेशर की वजह से गुप्ता एम्पायर जो है कोलैप्स हो गया था हुन्स के। अब यहां देखिए, मैंने बताया था गुप्ता एम्पायर के साथ वकाटकास, इन दोनों की भी चलती रहती थी फाइट्स। लेकिन चंद्रगुप्त द सेकंड चंद्रगुप्त द सेकंड जो है उसने फिर इसको बंद किया। हुन्स रीजन इज ईस्टर्न यूरोप। ओके, आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो देर वॉज दिस वन वेरी फेमस किंग कॉल्ड अटीला द हुन। Okay, Attila the Hun, who used to tie his peasant, the captured peasants, on horses, and he used to pull them apart. चार horses पे उसको बांध के, and they were very barbaric, and that is why I told you the story that mothers in Indian villages, they still till very recently they used to tell their kids, सो जाओ वरना हुंस आ जाएगा। देन हुंस में कौन कौन थे? तोरामना was the one of the earliest documented Hun leader। देखिए बहुत लेटर आया ये। हमने बात की थी स्किथियंस की और इंडो ग्रीक्स की। दे केम ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी बीसीई, एंड दीज पीपल दे केम अराउंड द फिफ्थ सेंचुरी एडी। सो दिस इज द टाइम व्हेन द गुप्ता स्टार्टेड टू डिक्लाइन। The Gupta decline had started. Chandragupta II was one of the last major emperor। उसके बाद जो भी आए आपके, they were basically involved in only keeping them out, and finally when the final ruler came, the Guptas collapsed। Then Mihir Kula, he was the son or successor of Toramana, and he is described as exceptionally harsh। harsh मतलब क्या? barbarians। These were proper barbarians, and they were expelled from the regions of Gangetic plains by the local forces, but he regrouped in Kashmir and Punjab। Okay, so later on they got defeated and assimilated with, and they married also। Okay, they married also into the Indian kingdoms, and they were finally assimilated। This is what India is: invasions, assimilation, invasions, assimilation, invasion, assimilation, and then you have the modern India। Okay, all three groups, they had introduced new military techniques including advanced cavalry practices, and they had Greek strategy, Greek war strategy। ओके, उसके साथ साथ द इंडो ग्रीक्स, वी टॉक्ड अबाउट, दे पायोनियर्ड बाइलिंगुअल कॉइनेज which was a tradition which was adopted by many other rulers including the Scythians। and Gandharan arts जो है, it has its own charm, and it is attributed to the Greco-Bactrian and the Kushan Empire, जो कि उस समय उसी रीजन में एग्जिस्ट करते थे। And the Hunas are seen as barbarians, but later on, when they started to mix with the Indian dynasties, this also got cooled down। So this is your Greco-Bactrian, Scythians and Hunas। सबसे पहले कौन आए? Greco-Bactrian, फिर आए Scythians, and then finally came the Hunas। Hunas कब आए? Later on, 500 years after the
Greco-Bactrians, and they were the adversaries of the Guptas, and they were the reason why the Guptas collapsed. Okay, so क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? We studied about Greco-Bactrians, Scythians and Hunas. Gupta period is done. Next class, okay. Scythians कब आए थे? देखिए, स्किथियंस और दी साकास जिनको कहते हैं, ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से थे, एंड देन अदर नोमैडिक ग्रुप्स दे पुश्ड देम. अदर नोमैडिक ग्रुप्स बेसिकली दे टोल्ड द स्किथियंस टू यहां से हटो. सो दे केम टू दिस एरिया, द ग्रेको बैक्ट्रियन एरिया. यहां पर देखिएगा ध्यान से, कौन से एरिया में? मॉडर्न डे सेंट्रल एशिया, मॉडर्न डे तुर्कमेनिस्तान, मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान, मॉडर्न डे साउथ रशिया. सो वहां से इनको पुश किया गया, तो किधर गए? बैक्ट्रियन रीजन में, जहां पर कौन थे? ग्रेको बैक्ट्रियन किंग्स वेयर लिविंग. उनको पुश किया यहां से साकाज को. तो साकाज ने पुश किया किसको? ग्रेको बैक्ट्रियंस को. एंड देन उसमें मोगा करके और माउजिस करके एक उनका इनिशियल रूलर्स था, हु रूल्ड इन द एरियाज ऑफ गांधार एंड पंजाब. एंड देन उसके बाद व्हेन दे स्टार्टेड टू गेन प्रोमिनेंस इन द एरियाज ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, दे चेंज्ड देयर नेम टू वेस्टर्न क्षात्राप्स. ये तो चलिए मॉडर्न हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी है. ओके, बाद में जो है उसमें एक रुद्र दमन करके किंग आया, हु वाज नोन फॉर द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन एंड डूइंग इरिगेशन वर्क एट सुदर्शन लेक. सुदर्शन लेक जो है बेसिकली इट हैज प्रोमिनेंस सिंस द मौर्यन टाइम्स. मौर्य टाइम्स में भी इनका बहुत प्रोमिनेंस है. वहां पर अशोकन इंस्क्रिप्शंस भी आपको मिल जाएंगे. एंड ये जो है दिस वाज सीन एज ए tactics of gaining legitimacy, that okay, see, I repaired a lake which was made or which was repaired by a great king. Okay, so this is what that was, the whole strategy was. And they called themselves Kshatraps or Mahashatraps, and they said that I am just like your king. जैसे इंडियंस आपका किंग है, मुझे भी अपना किंग मानो. आई एम ऑल्सो एज गुड एज एनी किंग, तो आई एम द क्षात्राप्स. ओके, ठीक है. एंड देन दे वेर कॉन्कर्ड बाय द गुप्तास. पहले देखिए क्या है, क्षात्राप्स. क्षात्राप्स वेर कॉन्कर्ड बाय द गुप्तास, एंड गुप्तास ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द हुन्स दे कोलैप्स्ड. तो सबसे पहले कौन आया? हुन्स आए कि क्षात्राप्स आए? क्षात्राप्स आए और द साकास, एंड देन केम द हुन्स. देन केम द हुन्स. ओके, सो इज इट क्लियर? स्किथियंस, किसी को कोई डाउट है ग्रेको बैक्ट्रियंस, स्किथियंस और हुनाज में? यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है. मिनांडर के बारे में याद रखिएगा, मिलिंद पन्हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, हिज वर्डिंग विथ नागसेन. बाकी जो है इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कंसेप्ट. ओके, कंसेप्चुअली जो है इंपॉर्टेंट है. नागसेन का याद रखना है, मिलिंद पन्हो. और कुछ है क्या इसमें दैट यू नीड टू रिमेंबर? यस, जूनागढ़ या गिरनार इंस्क्रिप्शन याद रखिएगा, विच इज repair work at Sudarshan Lake by a ruler called Rudradaman in the 2nd century AD. ओके, बाकी हुनाज में कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं. आई टोल्ड यू अबाउट टू रूलर्स विच आर इंपॉर्टेंट, तोरमना एंड मिहिर कुला. इसमें से भी मिहिर कुला को देखिए कब था? अर्ली 6th century AD. सो क्रोनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, क्रोनोलॉजी गेन्स प्रोमिनेंस. ज्यादा कुछ है नहीं रिवाइज करने के लिए. what I wish to convey to you is, suppose this handout you are sitting with in the month of April, it should not take more than 2 minutes. Why? Because you know there are three things important. You have to read about Milind Panho, Menander. You have to read about the Junagadh inscriptions, and then you have the third thing that you will read about is Rudradaman. तीन चीजें पढ़ लिया आपने, and you know the concept. You don't have to go through the entire handout. This is how revision will be done. पहला रिवीजन जो आप करेंगे, because revision is everything. पहला रिवीजन जो है, it might take you 2 days. Then the next revision might take you 1 day. Next revision will take you 6 hours. And by the time you will be done with your fourth revision, it will be taking you 2 to 3 hours. 2 से 3 घंटे में पूरा सब्जेक्ट. In the month of May, 20 days left for prelims, 15 days left. तुरंत उठा रहे हैं, 3 घंटे में खत्म, रिवाइज कर लिया. Same thing you will do in economics. Okay, so this is how the whole plan has to be there. Only 130 days are left. Please remember. 132 days are left.
इन द फॉर्म ऑफ डेज देर इज नॉट मच टाइम, मंथ्स में ज्यादा लगेगा, मंथ्स में लगेगा अरे अभी तो 4.5 महीने हैं बहुत है, लेकिन 130 days एंड ईच डे, अभी देखिए 10 बज गया, 10:30 बज रहा है अभी, 10:50 वट एवर द टाइम इज, ऑलरेडी आपका आधा दिन खत्म हो गया है, बाय द टाइम इट विल बी 5 PM नींद आना शुरू हो जाएगा। सो स्टार्ट, ओके स्टार्ट वेल, अभी से स्टार्ट कीजिए, मेंस बंद कीजिए अगर ऑप्शनल वगैरह का कुछ पढ़ रहे हैं आप, स्पेशली जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है अभी तक, मेंस नहीं पढ़ सकते, यू हैव नॉट अर्नड इट टिल नाउ, आई से मेंस बाद में भी हो सकता है, बंद कीजिए अभी मेंस एंड देन स्विच टू प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स नहीं है तो देर इज नो मेंस एंड देन देर इज नो इंटरव्यू एज वेल, ओके।